Hello everyone, welcome to Psychophysics classes, and I am Satnik Chakravarti. Welcome you all again after a long holiday. Okay, as usual, again I will apologize everyone. I'm very sorry for this long gap, but you all have a surprise. From today, we are going to start class 12 psychology for boards as well as for CUET. Okay, it's very important to focus for CUET now because just we got the results of CUET 2023, and the students, those who are appearing for 2024, have started their preparation. So I have planned again to start class 12 psychology for boards as well as for CUET. It will help you all a lot. Okay, so here again we are using NCRT psychology. Okay, and we are having the first chapter as variations in psychological attributes. So अब मैं ये बुक एकदम लाइन बाय लाइन फॉलो कर रहा हूँ. लाइन बाय लाइन इसलिए फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि मैंने भी CUET दिया था 2022 में, और मैंने जो लाइंस हाईलाइट किए थे उधर से ही क्वेश्चंस आया था. दैट्स व्हाई आई गॉट 180 आउट ऑफ 200. Okay, in CUET in psychology mainly. And now for boards I am explaining you everything. For CUET स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरी है. सब कुछ नहीं पढ़ना होता CUET के लिए. मैंने भी नहीं पढ़ा था CUET के लिए सब कुछ, जैसे एक्सप्लेनेशंस, डेफिनेशंस. ओके, जस्ट very small things that are hidden in different corners of the book. ठीक है, बहुत ज़रूरी है जानना. ठीक है, so मैं एक प्लान कर रहा हूँ. I'm planning to provide you all with the questions, okay, CUET related questions, that from where I will teach you all. ठीक है, जैसे कि 2-3 टॉपिक्स में मैंने एक लेक्चर में कंप्लीट किया, उस टॉपिक से मैं CUET रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आई विल प्रोवाइड यू द लिंक ऑफ गूगल डॉक. यू कैन एक्सेस फ्रॉम देयर. ओके, एंड बोर्ड्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है मैं वो लेक्चर के दौरान बताते जाऊँगा आप लोगों को. ठीक है, great. Without any delay, let us start. So first chapter we are having here is variations in psychological attributes. So what do you mean by variation? Variation means difference. Okay, difference in characteristics. You can say difference in anything. It can be both living or in non-living things. Okay, for an example, हम ऐसा बोल सकते हैं कि that the texture of that soil varies from another soil. Okay, soil is a non-living thing again. So that's the thing. Okay, so variation is applicable both for living and for non-living things. Attributes, characteristics. Okay, attributes are characteristics, behaviors, anything. Okay, that can define an individual, that can define a thing. Okay, so next up we are having individual differences. Individual differences is a difference between an individual from another individual. It can be on the basis of different attributes like intelligence, personality, emotions, memory, etc. Okay, definition is given. Definition दिया हुआ है आपके बुक नंबर पेज नंबर 2 में. ठीक है, क्या लिखा है कि इंडिविजुअल डिफरेंस रेफर टू डिस्टिंक्टिवनेस एंड वेरिएशंस अमंग पीपल्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियरल पैटर्न्स. इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव सिचुएशनिज्म. सिचुएशनिज्म क्या है? सिचुएशन है एनवायरनमेंट दैट वी आर फेसिंग, थिंग्स दैट वी आर फेसिंग. ठीक है, तो सिचुएशनिज्म क्या है? सिचुएशनिज्म वो चीज़ है, ओके, जहाँ पे हम लोग हमारा कैरेक्टर बिल्डअप करते हैं, हमारा कैरेक्टर शो करते हैं, हम बिहेव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर सिचुएशन. ठीक है, दैट वी आर फेसिंग. In other words, situationism is the phenomenon, okay, where we show our behavior, okay, on the basis of the situation we are facing. Great. Again, definition is given. Situation states that situations and circumstances in which one is placed influences one's behavior. Right. Next up, we are having
असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। तो इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन क्या है? ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू असेस वंस बिहेवियर। एसेस करने के लिए एट्रीब्यूट्स ज़रूरी है। एट्रीब्यूट्स को हम मेनली एसेस कर रहे हैं, जैसे मेमोरी, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, इमोशंस। सो एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं, वी हैव टू नो कितने तरह के एट्रीब्यूट्स हैं एंड द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ ईच एंड एवरी एट्रीब्यूट्स टू स्टडी इन वेरी ब्रीफ मैनर। डन? ओके, सो नाउ we are going to start with assessment of psychological attributes. Assessment क्या है? Assessment is the first step to understand one's behavior. Okay? पहला step किसी का behavior को analysis करने में, analyze करने में, ठीक है? Great. Next, we are having directly we'll go to the two types of assessment, that is informal and formal. What do you mean by formal assessment? Formal assessment में क्या होता है? फॉर्मल असेसमेंट इज ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्डाइज एंड ऑर्गेनाइज्ड असेसमेंट। फॉर एन एग्जांपल, जैसे किसी का इंटेलिजेंस हम टेस्ट कर रहे हैं, दैट विल एक एज ग्रुप तक सेम रहेगा, ठीक है? और इंटेलिजेंस को अगर हम छोड़ के अगर हम डिफरेंट एक एट्रीब्यूट लेते हैं, फॉर एन एग्जांपल पर्सनैलिटी will be same for an individual. Okay, it will be same for an individual with throughout the lifetime. So we have standardized tests for personality. एक organized tests है कुछ personality के लिए, एक systematic test है personality के लिए। तो जिस टेस्ट को अगर एक इंडिविजुअल परफॉर्म करता है तो उसका रिजल्ट से हम जो इंडिविजुअल है उसका पर्सनैलिटी हम मेजर कर पाएंगे, हम लोग देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि वो कौन से पर्सनैलिटी टाइप का है। अंडरस्टूड? दिस इज नोन एज फॉर्मल असेसमेंट, अ सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड, स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट टाइप। इनफॉर्मल असेसमेंट क्या है? इनफॉर्मल असेसमेंट उस एट्रीब्यूट्स के लिए किया जाता है जो वैरी करता है लाइफ में। जैसे मैंने बोला इंटेलिजेंस, ओके, इंटेलिजेंस वैरीज। ओके, हम जब बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, एक अलग इंटेलिजेंस स्केल होता है हम लोगों का। इंटेलिजेंस यू कैन से इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस होता है, तब किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। इन एडोलेसेंट और इन टीनेज टाइम वी हैव अ डिफरेंट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, in adulthood we have a different level of intelligence. Then at last, in our old age, we have a different level of intelligence. So it differs, it varies from different age group to age group. For this we use informal assessment type. Okay, जैसे एनसीईआरटी में लिखा है, बुक में लिखा है कि ऑन अदर हैंड इनफॉर्मल असेसमेंट वेरीज फ्रॉम केस टू केस एंड फ्रॉम वन एक्सेसर टू वन एक्सेसर। और ऑब्वियसली इंटेलिजेंस एक इंडिविजुअल से एक इंडिविजुअल सेम नहीं होगा कभी भी। ओके, so these were two assessment types. Okay, now some domains of psychological attributes. Now we will start with different types of psychological attributes, starting with intelligence. Okay, intelligence is the global capacity to understand the world. Okay, intelligence क्या है? A global capacity है to understand the world, think rationally and use available resources, okay, effectively when faced with challenges. अब इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस एट्रीब्यूट है टू अंडरस्टैंड, ओके, टू अंडरस्टैंड डिफरेंट पीपल इन द वर्ल्ड, ओके, एंड it comprises of different challenges that comes in an individual's life, okay, from where we can assess someone's intelligence. Next we have aptitude. Okay, we'll first read very briefly, then we'll go in great details. Aptitude क्या है? Refers to an individual's underlying potential for acquiring skills. Okay, aptitude refers to an individual's underlying potential for acquiring skills. How someone can acquire skills. ऐसा बोलते हैं ना कि पापा मम्मी लोग बोलते हैं, कोई भी बोलता है कि वो जो आपका बेटा है, वो जो शर्मा जी का बेटा है, वो बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ लेता है, बहुत अच्छे से एकदम एक बार में पकड़ लेता है चीज़ों को. दिस इज़ एप्टीट्यूड. हाउ फास्ट यू कैन कैच
the the skill or the thing that you are knowing, you are understanding, you are learning. Okay. Next up, we are having interest. Is an individual's preference for engaging in one or more specific activities relative to others. Now, what is interest? Interest is an individual's preference for engaging, okay, in one or more than one activities relative to others. Okay. Interest. It's very easy to understand what is interest. Interest is someone's, okay, likeness. Okay, someone's likeness, someone's passion towards something. Okay, that's interest. What is personality? Refers to a relatively enduring characteristics of a person that makes him or her distinct from others. Again, personality क्या है? Relatively enduring characteristics है. Characteristics है that differs, okay, an individual to another individual. Values are enduring beliefs about an ideal mode of behavior. Values क्या है? Enduring beliefs है. Believes, okay, what do we believe? What is our perception about something or someone? Okay, that comprises our values, okay, that can shape our behavior. These were the number of attributes we will study in detail. Next, we are having assessment modes, how we can assess someone's behavior. First, obviously, we are having psychological tests. There are many tests invented to understand, okay, or to assess different attributes. Okay, बहुत सारे टेस्ट्स हैं पूरे वर्ल्ड में. सबका साइकोलॉजिकल जो एट्रीब्यूट है, मेंटल है, एबिलिटी है, सब कुछ असेस करने के लिए एक स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल टेस्ट्स डेवलप किए गए हैं पूरे वर्ल्ड में. इंटरव्यू इज़ वेरी इजी. ओके, सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम समवन वन टू वन. ओके, किसी के साथ डायरेक्टली वन टू वन फेस टू फेस बात करना, ओके, उनसे इंफॉर्मेशन लेना इज़ इंटरव्यू. केस स्टडी, किसी के बैकग्राउंड के बारे में, किसी के पास्ट लाइफ के बारे में जानना, दैट इज़ नोन एज केस स्टडी. ओके, सिर्फ किसी के नहीं, मतलब ये वन टू वन नहीं, मतलब एक ग्रुप में भी हम सबके साथ बात कर सकते हैं कि ठीक है, आपके लाइफ में क्या हुआ था, ठीक है, इस चीज़ ने आपको क्यों डिप्रेस्ड कर दिया, क्या था आप इसके पीछे, चाइल्डहुड कैसा था आपका, स्कूल लाइफ कैसा था, टीनेज लाइफ कैसा था. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ केस स्टडीज. ऑब्जर्वेशन, वेरी इजी. ऑब्जर्वेशन, ओके, टू ऑब्जर्व समथिंग इन्वॉल्व्स employing systematic, organized and objective procedures to record behavioral phenomenon occurring naturally in the time. Okay, जब हम लोग सपोज हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं किसी का, ओके, द एबिलिटी टू ऑब्जर्व, ओके, हम देख सकते हैं उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, क्या पोस्चर कैसा है, ऐसा है, एकदम बेंडेड है, यस अपराइट है. ओके, दिस मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. ओके, बॉडी लैंग्वेज इज द नॉन वर्बल क्यूज. ओके, it is very important, okay, to assess someone's behavior. Very, very important. That's why observation skills should be, okay, for a psychologist, observational skills should be very, very good, excellent. Okay, next we have self-report. Okay, someone's ability to say each and everything about themselves. Nice. Done. So these were the assessment methods. Again I am saying, पहले जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स. सबका डेफिनेशन बुक में है, पढ़ लेना फॉर 1 to 2 मार्क्स. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आएगा ही आएगा. ठीक है, 1 से 2 मार्क का डेफिनेशन आएगा बोर्ड्स में. नेक्स्ट, असेसमेंट मेथड का भी पूरा वो डेफिनेशन दिया गया है बुक में, पढ़ लेना. 1 से 2 मार्क का आ सकता है. ग्रेट, डन. बोर्ड्स का मैंने बोल दिया क्या आ सकता है, जितना मैंने पढ़ा है. पहले से क्या पढ़ा है, सिचुएशनिज्म, इंडिविजुअल डिफरेंस, पढ़ लेना डेफिनेशन, मैंने बोल दिया था तभी. फिर मैंने क्या बोला, एट्रीब्यूट्स का डेफिनेशन पढ़ लेना है, असेसमेंट मेथड्स का डेफिनेशन पढ़ लेना फॉर बोर्ड्स. अब इधर से CUET में क्या इंपॉर्टेंट है, आई विल ट्राई टू गिव द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द गूगल डॉक. यू कैन एक्सेस द क्वेश्चंस. Next we are having
इंटेलिजेंस। नाउ अभी हम लोग बहुत डेप्थ में जाएंगे, इंटेलिजेंस क्या है, किसने इंटेलिजेंस में पहले काम किया था, थ्योरीज क्या क्या है। ओके, पूरा इंटेलिजेंस हम कंप्लीट आज के वीडियो में नहीं करेंगे। फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, क्या होगा चैप्टर में, थोड़ा सा ओवरव्यू दिया। अब थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे, थोड़ा सा इंटेलिजेंस को टच करेंगे, कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे, विल रैप अप द वीडियो हियर। ओके, कल से विल स्टार्ट अप अ डिटेल्ड वीडियो। ओके, द रेस्ट ओके विल स्टार्ट एंड देखते हैं कितने लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है। थोड़ा सा लंबा है, इट मे टेक 2 to 3 lectures, 2 lectures obviously it will take 3 to 4 maximum. Okay, we'll try to wrap up the chapter fast because और भी बहुत सारे chapters हैं, correct, and I will try to complete few of the chapters in my this vacations. So इंटेलिजेंस का डेफिनेशन मैंने पहले ही बोल दिया था। फर्स्ट, इंटेलिजेंस क्या है? एन एट्रीब्यूट टू डिफर डिफरेंट इंडिविजुअल्स। अब क्या है? इंटेलिजेंस इज अ की कॉन्स्ट्रक्ट एम्प्लॉयड टू नो हाउ डिफरेंट इंडिविजुअल्स हाउ इंडिविजुअल्स डिफर फ्रॉम वन अनदर। सो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या है? अब मैं आप लोगों को बोर्ड्स में कैसे आंसर लिखना होता है बताऊंगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सी द मार्क्स। इंटेलिजेंस अगर ऐसा है कि 1 से 2 नंबर का आ रहा है, फिर जस्ट राइट द डेफिनेशन। नाउ 3 to 4 मार्क्स, 5 मार्क्स का अगर आता है, जो आने का चांस कम है, फिर भी अगर 3 to 4 मार्क्स, 5 मार्क्स का आता है, देन फर्स्ट राइट द डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस, देन राइट अ डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस गिवन बाय अ साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, इससे भी थोड़ा सा कंप्लीट हो रहा है और कुछ बाकी है। अब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो मैं बताने वाला हूँ, उन्होंने क्या बोला था, ये भी लिख सकते हो और एक साइकोलॉजिस्ट का डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, देन इट विल बी कंप्लीटेड एज 4 to 5 मार्क्स क्वेश्चंस आंसर। ग्रेट, डन। सो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी एक्सप्लेन्स इंटेलिजेंस एज द पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, नोइंग। 4 कंपोनेंट्स। क्या है 4 कंपोनेंट्स? परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, नोइंग। परसीविंग क्या है? टू परसीव आवर सेंसेशंस। सेंसेशंस क्या है? अब मेरा पंखा का आवाज़ आप सुन सकते हो, ये आवाज़ आपके कानों में जो जा रहा है, ये आवाज़ आपके कानों में जो जा रहा है, दिस इज सेंसेशंस, बिकॉज दिस इज अ सेंसरी इनपुट। कैसे सेंसरी इनपुट? ईयर एक सेंस ऑर्गन है, ठीक है, इससे इनपुट जा रहा है, आवाज़ जा रहा है अंदर, सेंसरी इनपुट हुआ। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि ये शायद पंखा का आवाज़ है। ठीक है, इससे एक और एक बढ़िया कोई एग्जांपल देते हैं। ठीक है, ये तो मैंने बोल दिया, छोड़ो, ये मैंने बोल दिया कि ये पंखा का आवाज़ है। सपोज आप क्लासरूम में बैठे हैं और बाहर से एक आवाज़ हुआ। ठीक है, एक आवाज़ हुआ बाहर से। अब आवाज़ आपके कान के अंदर क्या? सेंसेशन, सेंसरी इनपुट। अब उसको आप बता सकते हैं एक ट्रक का आवाज़ हुआ और एक ट्रक जस्ट मेरे डिपार्टमेंट के सामने से गुजरा, ये मेरे बिल्डिंग के सामने से गुजरा। दिस इज परसेप्शन। व्हेन यू अंडरस्टैंड योर सेंसेशन, आप समझ गए हैं कि जो आवाज़ आपके कानों से अंदर गया है वो एक ट्रक का आवाज़ है। ट्रक का आवाज़ इज अ परसेप्शन। आवाज़, सिर्फ आवाज़ इज सेंसेशन। ठीक है, मैंने पंखा का तो एग्जांपल दे ही दिया है। ठीक है, और एक क्या एग्जांपल हो सकता है? और एक लाइव एग्जांपल, और एवरी एग्जांपल इज अ लाइव एग्जांपल। कोई आपके बगल वाले रूम में बैठ के गिटार बजा रहा है, साउंड अंदर गया, सेंसेशन। किसका साउंड है? गिटार का, परसेप्शन। ठीक है, टू अंडरस्टैंड योर सेंसरी इनपुट, परसेप्शन। बहुत ब्रीफली मैंने समझा है, परसेप्शन का अलग से चैप्टर होता है जो कॉलेज लेवल में आप पढ़ोगे। ठीक है, लर्निंग क्या है? लर्निंग अगेन टू गेन नॉलेज। ओके, लर्निंग अगेन टू कुछ सीखना। ओके, कुछ सीखना, हर वक्त कुछ सीखते जाना, कुछ नॉलेज अपने अंदर गेन करना, लर्निंग। ओके, अंडरस्टैंडिंग टू कम्प्रीहेंड, टू समझना। नोइंग, जानना, अवेयर। ओके, यू आर नोन ऑफ एवरीथिंग, यू आर नोन ऑफ दैट फैक्ट। आप जानते हैं उधर क्या हो रहा है, आप जानते हैं कि मेरे दोस्त लोग क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में, आप जानते हैं। जानना, नोइंग। ठीक है,
तो Alfred Binet was one of the first psychologists who worked on intelligence, very important for CUET. Okay, Alfred Binet was one of the first psychologists who worked on intelligence. He defined intelligence, very important for boards. He defined intelligence as the ability to judge well, understand well and reason well. एल्फ्रेड बिनेट ने क्या बोला, इंटेलिजेंट पर्सन हम उसको ही बुला सकते हैं जिसके अंदर ये तीनों क्वालिटीज़ है. क्या क्वालिटीज़ है? वो जज कर सकता है अच्छे से. जज मतलब कोर्ट वाले जज नहीं. कौन सा जज? हर लाइफ सिचुएशंस में जज करना. ठीक है, जैसे सपोज दोनों चीज़ें हैं कि एक फ्रेंड ने आपको आपके बेस्ट फ्रेंड के बारे में कुछ बोल दिया, एंड नाउ यू आर जजिंग योर बेस्ट फ्रेंड कि क्या वो सही है, क्या मेरा बेस्ट फ्रेंड सही है या जिसने उसके बारे में बोला वो सही है. ओके, द एबिलिटी टू जज, ओके, द एबिलिटी टू टेक डिसीजंस आफ्टर दिस जजमेंट. ओके, इसको मैं बोल रहा हूँ, इस जजमेंट को मैं बोल रहा हूँ. ठीक है, दो सिचुएशंस के अंदर कैसे आप एक डिसीजन लेते हैं और डिसीजन लेने के पहले आपको जज करना है. ठीक है, उस जजमेंट को मैं बोल रहा हूँ. नेक्स्ट इज अंडरस्टैंड वेल, टू कम्प्रीहेंड, तो समझना, अच्छे से समझना, अपने आसपास क्या चल रहा है जानना और समझना. एंड अगेन टू रीजन वेल, जानने के बाद रीजन देना, जस्टिफाई करना कि वो क्या क्यों हो रहा है. द एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल, रीजन वेल, known as intelligence as per Alfred Binet. Okay, understood? Very important for boards. मैं फिर भी बार बार बोलते जा रहा हूँ, कॉपी और पेन लेके बैठो, मैं जो बोलते जा रहा हूँ वो नोट करो, फिर बुक में देखो कहाँ है, जस्ट हाईलाइटेड. अंडरस्टूड? नेक्स्ट विल गो टू द थ्योरी ऑफ वेक्सलर. ओके, वेक्सलर. द मोस्ट ऑफ द इंटेलिजेंस टेस्ट्स दैट वी परफॉर्म, ओके, are based on Wechsler theory और Wechsler tests. Now Wechsler ने क्या बोला था, इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस उसने बोला था कि he defined global and aggregated capacity of individual to think rationally, act purposefully and deal effectively with his or her environment. उसने बोला था कि एक अच्छे से सोच वालों, जो अच्छे से सोच पाते हैं वो, यू नो, और जो एनवायरनमेंट के साथ इफेक्टिवली अडेप्ट हो सकते हैं, वो, उसको हम इंटेलिजेंट पर्सन कह सकते हैं. जो सोच अच्छे से सकते हैं और जो अपने एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट हो सकते हैं. अब नाउ इफ यू जस्ट थिंक, ओके, नाउ इफ यू जस्ट थिंक, यू विल नो दैट, अब लोग जान पाओगे कि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इंटरकनेक्टेड है. नाउ एल्फ्रेड बिनेट ने क्या बोला था? जज वेल, अंडरस्टैंड वेल, रीजन वेल. वेकलर क्या बोल रहा है? हाउ टू अडेप्ट योर सेल्फ टू द एनवायरनमेंट. ओके, और जो अच्छे सोच, वेल, द एबिलिटी टू थिंक गुड. ओके, हाउ द एबिलिटी टू थिंक वेरी पॉजिटिवली. ओके, एंड द एबिलिटी टू थिंक. बस. अब इंटेलिजेंट तो हम उस बेसिस में कहेंगे ना, वो कैसे सोच रहा है. अच्छा भी सोच रहा होगा, बुरा भी सोच रहा होगा. अच्छा सोच वालों को हम बोल सकते हैं गुड, इंटेलिजेंट पर्सन. खराब सोच वालों को हम बोल सकते हैं दे आर नॉट इंटेलिजेंट पर्सन. सो सोचने के लिए भी हम लोगों को क्या करना पड़ता है? हम लोग को जज करना पड़ता है. जज, यू नो, वी आर जजिंग समवन मीन्स वी आर थिंकिंग रैशनली. ओके, वी आर थिंकिंग रैशनली. अंडरस्टैंड, कुछ समझने के लिए भी हमको लोगों को सोचना पड़ता है. ओके, कहीं ना कहीं एल्फ्रेड बिनेट, वेक्सलर का थ्योरी इंटरकनेक्टेड है. ठीक है, सिर्फ ये नहीं, साइकोलॉजी में सब कुछ ही इंटरकनेक्टेड है. इन फर्दर स्टडीज यू विल अंडरस्टैंड दैट. ग्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट. वेक्सलर थ्योरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स एंड फॉर सीयूईटी. कौन सा पार्ट सीयूईटी में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट्स tests we use for assessing intelligence. Wechsler. Great. Next, other psychologists such as Gardner and Sternberg have suggested that an intelligent individual not only adapts to the environment but also actively modifies it. Sternberg और Gardner ने थोड़ा अडेप्ट किया वेक्सलर की थ्योरी को. उन्होंने क्या बोला? उन्होंने यही बोला कि एक इंटेलिजेंट पर्सन सिर्फ
इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट नहीं होता, इन्वायरमेंट को शेप भी करता है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल आजकल फेमिनिस्ट बहुत ट्रेंड में चल रहा है, तो फेमिनिस्ट की बात करते हैं। तो जो अच्छे फेमिनिस्ट है, जो एकदम अच्छे राइट्स फॉर द रीजनेबल फॉर द राइट्स, द करेक्ट राइट्स फॉर गर्ल्स, ओके, तो फॉर फीमेल्स, ओके, जो लड़ते हैं उन लोगों का बात कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट एज एन इंडिविजुअल सोसाइटी के साथ अडेप्ट करना पड़ेगा हम लोगों को, इनिशियल स्टेज का बात कर रहा हूँ, सोसाइटी के साथ खुद को अडेप्ट करना पड़ेगा। फिर अडेप्ट होने के बाद, एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट होने के बाद, फिर वो लोग एनवायरनमेंट को चेंज कर रहे हैं। एनवायरनमेंट का थॉट प्रोसेस डिफरेंट था पहले, कि लड़कियाँ बाहर नहीं जा सकती, लड़कियाँ काम नहीं कर सकती, ये सब। उन्होंने एनवायरनमेंट को चेंज किया, थॉट प्रोसेस ऑफ एनवायरनमेंट को चेंज किया। वी कैन से देम इंटेलिजेंट पीपल, दिस इज द थिंग, ठीक है। पहले खुद को सोसाइटी के साथ, एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट होना पड़ेगा, फिर तुम एनवायरनमेंट को चेंज करो, तुम्हारे थिंकिंग से चेंज करो, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग से चेंज करो, तुम्हारे रीजन से चेंज करो। दैट इज द सिम्टम, दैट इज वी कैन से द क्वालिटीज ऑफ एन इंटेलिजेंट पीपल और इंटेलिजेंट पर्सन, ओके। देन नाउ विल गो ऑन टू थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, ओके। थ्योरीज में मैं सिर्फ 1 2 3 4 5 थ्योरीज आज करेंगे हम लोग, फिर विल रैप अप द वीडियो एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे द रेस्ट ऑफ द थ्योरीज विल टच अप, okay. So the first theory we are going to do is a psychometric approach. Obviously all the theories are on the psychometric approach, and the first theory we will do is the one factor theory of Alfred Binet. अब psychometric approach क्या है? Psychometric approach is an approach where we understand intelligence as a aggregate of different various qualities, okay. जैसे मैंने बोला, इंटेलिजेंस सिर्फ एक क्वालिटी नहीं है कि पढ़ाई में अच्छा है, नहीं है, दैट इज़ नॉट इंटेलिजेंट, दैट इज़ नॉट इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के अंदर बहुत सारे क्वालिटीज़ आते हैं, जैसे मैंने बोला, थिंकिंग अच्छे से होना चाहिए, रीज़न अच्छे से करना चाहिए, जज करना आना चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वालिटीज़ है, परसेप्शन एबिलिटी अच्छा होना चाहिए, फास्ट परसेप्शन क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। दैट इज़ द थिंग, ये है साइकोमेट्रिक अप्रोच। सो द फर्स्ट थ्योरी, द वन फैक्टर थ्योरी, ऑल्सो नोन एज यूनी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीयूईटी। मेरे टाइम में भी आया था ये क्वेश्चन कि वन फैक्टर थ्योरी किसने दिया था, ठीक है। इट वॉज गिवन बाई एल्फ्रेड बेनेट, अगेन द फर्स्ट पर्सन टू स्टडी और टू डू रिसर्च ऑन इंटेलिजेंस। He therefore conceptualized intelligence as consisting of one similar set of abilities which can be used for solving any or every problem in an individual's environment. This theory came to be disputed when psychologists started analyzing data of individuals which was collected using Binet's test. Okay, so जैसे नाम सजेस्ट करता है कि वन फैक्टर थ्योरी, उन्होंने क्या बोला, एक सेट ऑफ एबिलिटीज़ है, सिर्फ उसको ही फॉलो करके हम बोल सकते हैं कि वो इंटेलिजेंट पर्सन। जैसे एल्फ्रेड बिनेट ने क्या बोला था, अगेन, जज वेल, अंडरस्टैंड वेल, रीजन वेल, थ्री क्वालिटीज़ उन्होंने दिए थे, ठीक है। उनको वो बोल रहे हैं कि यही तीनों क्वालिटीज़ है जिससे हम एक इंडिविजुअल को इंटेलिजेंट कह सकते हैं, दैट इज़ द वन फैक्टर थ्योरी। डन। इन 1927, डेट याद रखना, 1927, चार्ल्स स्पीयरमैन प्रपोज्ड टू फैक्टर थ्योरी, जी फैक्टर, एस फैक्टर, जनरल फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक साइंटिस्ट है, बहुत ऑब्वियसली एक ग्रेट साइंटिस्ट है। अब उनका जो ये मतलब जो जनरल मेंटल एबिलिटी है, जैसे कॉग्निशन के अंदर बहुत सारी कुछ चीज़ें आते हैं, जैसे थिंकिंग, मेमोरी, परसेप्शन, ओके, ये सब चीज़ें अच्छे हैं, ऑब्वियसली अच्छा होना चाहिए। इमोशंस, ये सब बहुत अच्छे हैं, इसलिए वो एक अच्छे साइंटिस्ट है, द फेमस साइंटिस्ट। ये दीज फैक्टर्स आर नोन एज जनरल फैक्टर्स, ओके, कॉमन
to everyone, common to everyone, general factors, general mental abilities, specific factors. Now these general factors accompany specific factors for that great scientist. एक अच्छा फेमस साइंटिस्ट होने के लिए सिर्फ जनरल फैक्टर अच्छा नहीं होना होगा, ऑब्वियसली उसके साथ कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स है. जैसे एक साइंटिस्ट है, उसका सपोज वो फिजिसिस्ट है, फॉर एन एग्जाम्पल फिजिसिस्ट है, उसका फिजिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए. साइकोलॉजिस्ट है, उसका साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए, उसका साइकोलॉजी एकदम सब कुछ उनको आना चाहिए, या बहुत एक्सपर्ट होने चाहिए वो एक फील्ड में. दैट इज स्पेसिफिक फैक्टर. जनरल फैक्टर क्या है? मेंटल एबिलिटी, कॉग्निशन, ये सब अच्छा है. दिस इज जनरल फैक्टर. ओके, सो टू फैक्टर थ्योरी, चार्ल्स स्पीयरमैन इन 1927 सेड दैट ये दोनों चीज़ें हैं जो एक आदमी को इंटेलिजेंट बनाता है. ठीक है, डन. नेक्स्ट, लुइस थर्स्टोन प्रपोज द थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज. उन्होंने क्या बोला था कि इंटेलिजेंट पर्सन के अंदर प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज है. क्या प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज है? 7 मेंटल एबिलिटी दिया गया है बाय लुइस थर्स्टोन. क्या क्या है? वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, न्यूमेरिकल एबिलिटीज, स्पेशियल रिलेशन, परसेप्चुअल स्पीड, word fluency, memory, inductive reasoning. Verbal comprehension, obviously to understand someone's speech, okay, to also apply different sentences, okay, in different situations. Done. Numerical abilities to deal with numbers, okay, accuracy and speed in different numerical calculations. Spatial relation क्या है? एक चीज़ का शेप, साइज, डिस्टेंस सब कुछ अच्छे से एनालाइज करना, दैट इज नॉन अ स्पेशल एबिलिटी. परसेप्चुअल स्पीड, कितने अच्छे से, कितना जल्दी तुम एक चीज़ को परसीव कर सकते हो, दैट इज द थिंग. वर्ड फ्लुएंसी, कितने अच्छे से तुम एक वर्ड को एक सेंटेंस में डाल सकते हो, या वर्ड को एक कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हो, दैट इज नॉन एज वर्ड फ्लुएंसी. मेमोरी, obviously ability to memorize something, याद रखना अच्छे से, memory. Inductive reasoning, obviously inductive reasoning means deriving general rules from presented facts. मतलब कुछ फैक्ट आपको दिया जाता है, उससे एक चीज़ को परसीव करना, एक रूल को एक्सट्रैक्ट करके लाना, तो रीजनिंग है. तो एबिलिटी टू रीजन फॉर समथिंग, ओके, दैट इज नोन एज इंडक्टिव रीजनिंग. ये हो गया एक थ्योरी. और थ्योरी है अर्थर जेनसन. अर्थर जेनसन प्रपोज्ड हायरार्किकल मॉडल, लेवल 1, लेवल 2. Hierarchical model was proposed by Arthur Jensen. Very important. उन्होंने क्या बोला था? Intelligence can be said as it has 2 levels, level 1, level 2. Level 1 is associative learning, in which output is more or less same than the input. अब जैसे हम रॉट करते हैं, उन्हें रट्टा मारते हैं, हर दिन रट्टा मारते हैं, एग्जाम के पहले रट्टा मार रहा है, ठीक है, क्या रट्टा मार रहा है? जो बुक में एक पैराग्राफ है वो रट्टा मार रहा है, एग्जाम के टाइम वही पैराग्राफ लिख रहा है. इनपुट जो हम ले रहे हैं और आउटपुट जो दे रहे हैं सेम है. पैराग्राफ में जो लिखा है वही मैंने कॉपी में जाके लिखा है. दैट इज नोन एज द लेवल 1, एसोसिएटिव लर्निंग. लेवल 2, हायर ऑर्डर थिंकिंग, हायर ऑर्डर स्किल्स, हायर कॉग्निटिव स्किल्स. ओके, जैसे मैंने बोला कि स्पेसिफिक फैक्टर में क्या था, चार्ल्स स्पीयरमैन 1927, जनरल फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर, ऐसे याद रखो. स्पेसिफिक फैक्टर क्या है? कॉग्निटिव जनरल था. स्पेसिफिक क्या था कि वो फिजिसिस्ट है तो फिजिक्स में अच्छा होना है उनको, साइकोलॉजिस्ट है साइकोलॉजी में अच्छा है. तो कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स है जहाँ पे वो लोग अच्छे हैं. म्यूजिशियन म्यूजिक में अच्छे हैं, ऐसे, ठीक है. सो नेक्स्ट थ्योरी, जेपी गुइलफोर्ड प्रपोज द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल. उन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया था, ओके, 3 कंपोनेंट्स ऑफ द स्ट्रक्चर, ऑपरेशंस, कंटेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. अब मैं एक चीज़ लिखूंगा, आप लोगों थोड़ा सा ध्यान से देखना. आई होप सबको दिख रहा होगा. व्हाट, हाउ, हाउ, ऑपरेशन, content and the result.
and the product or result. ठीक है. अब ऑपरेशन, व्हाट इज ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू आवर लुइस गुइलफोर्ड, सॉरी नॉट लुइस गुइलफोर्ड, जेपी गुइलफोर्ड. ऑपरेशन के अंदर क्या है, व्हाट एन इंडिविजुअल इज डूइंग. ओके, व्हाट एन इंडिविजुअल इज डूइंग मतलब वो क्या अप्लाई कर रहा है, क्या वो सोच रहा है, या क्या वो मेमोराइज कर रहा है, या क्या वो कुछ कंप्रीहेंड करने की कोशिश कर रहा है, क्या वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा है, क्या वो कुछ रीजन करने की कोशिश कर रहा है, ये चीज. ओके, नेक्स्ट कंटेंट में हाउ, कि कैसे. हाउ, इसमें हाउ का मतलब ये होगा कि जो इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है वो किस टाइप का इंफॉर्मेशन है. जैसे सपोज हम देख रहे हैं एक क्राइम सीन में है, वो क्राइम हुआ नहीं लेकिन हम क्राइम होते देख रहे हैं. फर्स्ट ऑपरेशन, व्हाट, हम क्या कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि क्या करें. उसके साथ बहुत कुछ होगा, सिर्फ सोच नहीं है, मेमोराइज कर रहे हैं कि क्या हो रहा है. हम कंप्रीहेंड करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं हो क्या रहा है. ओके, फर्स्ट ऑपरेशन डन, हो गया, खत्म. नेक्स्ट कंटेंट, इंफॉर्मेशन जो है वो कैसा टाइप का, हॉरिफिक इंफॉर्मेशन है, डिस्टर्बिंग इंफॉर्मेशन, नॉट अ प्लीजेंट इंफॉर्मेशन, हॉरिफिक इंफॉर्मेशन है जो हमको डिस्टर्ब कर रहा है, हमको खुशी नहीं कर रहा है, खुश नहीं कर रहा है. ओके डन. प्रोडक्ट हाउ. अब जो रेस्पोंडेंट, जो मैं हूँ, हम कैसे प्रोसेस कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को, हम कैसे सोच रहे हैं, कैसे परसीव कर रहे हैं, क्या करना है हमको. क्या हम उसको अच्छा इन्फॉर्मेशन बोलेंगे, क्या हम उसको गंदा इन्फॉर्मेशन बोलेंगे, डिस्टर्बिंग इन्फॉर्मेशन बोलेंगे. दैट इज प्रोडक्ट. डन. नाउ one thing you should know that since this classification includes 6 by 6 by 6 by 5 by 6 categories, therefore the model has 180 cells. ओके, पैराग्राफ में लिखा गया है जहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, उधर लिखा गया है कि 6 into 5 into 6 categories, therefore the model have 180 cells. इंपॉर्टेंट है, सीवीटी में आ सकता है. ठीक है. नेक्स्ट एंड द लास्ट theory that we'll do today, the theory of multiple intelligence. Very very important for your boards, very important for your boards, also for your CVT, given by the famous psychologist, the theorist Howard Gardner. Okay, माली नहीं, गार्डनर मतलब वो माली नहीं, इनका टाइटल गार्डनर है, नॉट गार्डनर, इज गार्डनर, GARDNER. प्रपोज द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस. उन्होंने क्या बोला था, इंटेलिजेंस सिर्फ कुछ सेट ऑफ क्वालिटीज से नहीं जज किया जा सकता. इंटेलिजेंस, एक इंटेलिजेंट पर्सन के अंदर बहुत सारे क्वालिटीज़ हो सकते हैं. मल्टीपल इंटेलिजेंस. ओके, मल्टीपल इंटेलिजेंट पर्सन भी हो सकता है कि हर एक फील्ड में अच्छा हो, गिफ्टेड. ओके, दैट मीन्स अ प्रोडिजी, गिफ्टेड. ओके, ये सब. फर्स्ट थिंग, लिंग्विस्टिक, ऑब्वियसली वर्बल स्किल्स में अच्छा है. वो इंटेलिजेंट पर्सन जो जिसका मैं बात कर रहा हूँ, वो वर्बल स्किल्स में अच्छा है. उसको पता है कि कैसे स्टेटमेंट को यूज़ किया जा सकता है एक कन्वर्सेशन में, एक सिचुएशन में. ठीक है. नेक्स्ट, लॉजिकल मैथमेटिकल. ऑब्वियसली लॉजिकल स्किल्स बहुत अच्छे हैं, मैथमेटिकल स्किल्स बहुत अच्छे, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करने में वो बहुत माहिर है. डन. नेक्स्ट, स्पेशियल. स्पेशियल में क्या है, स्पेशियल में मैंने पहले भी बोला था कि एक चीज़ का शेप, साइज, डिस्टेंस कैसे एक इंडिविजुअल एनालाइज कर सकता है, दैट इज स्पेशियल. म्यूजिकल एबिलिटी, ऑब्वियसली गुड इन म्यूजिक, सेंस ऑफ म्यूजिक इज वेरी गुड. ओके. बॉडीली काइनेस्थेटिक. बॉडीली काइनेस्थेटिक मतलब टू नो ईच एंड एवरी पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, समझना कि ये हाथ है, मेरा ही हाथ है, ये सर है, ये कान है, सब ये सब समझना, और मूव कराना. ओके, मूव कराना ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट को, जहाँ पे ज़रूरी है उधर मूव कराना, दैट इज नोन एज बॉडीली काइनेस्थेटिक एबिलिटी. इंटरपर्सनल. ओके, अपने नेबर्स के साथ, सोसाइटी के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे अडेप्ट किया जा सकता है, कैसे रिलेशनशिप बढ़ाया जाता है, दैट इज नोन एज इंटरपर्सनल स्किल. नेक्स्ट, इंट्रापर्सनल स्किल, खुद के साथ, खुद को जानना. ठीक है, खुद को समझना, खुद का एक इमेज बनाना, दैट इज नोन एज इंट्रापर्सनल. नेचुरलिस्टिक, एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट होना, एनवायरनमेंट के साथ लगाव होना, क्योंकि जो सपोज जो देयर आर डिफरेंट पोएट्स, वी नो डिफरेंट, विलियम वर्ड्सवर्थ,
ओके, द वुड्स, अगर याद है आप लोगों को, द वुड्स या ऐसा ही कुछ पोएम था, मैं नाम ठीक से याद नहीं आ रहा है. विलियम वर्ड्सवर्थ और देन डैफोडिल्स पोएम was very very close to nature. He loved nature. So इस बारे में हम बोल रहे हैं. उनका linguistic skill अच्छा था. He was a naturalistic person. उनके intrapersonal skills अच्छा था उनका. ठीक है. Next, okay, we are having, okay, up to here. So how many? 1 2 3 4 5 6 7 8 abilities given by Howard Gardner. As per Howard Gardner, there are multiple abilities that makes an individual intelligent. Understood? Great. So इतना ही हम लोग आज पढ़ रहे हैं. और जहाँ तक मैंने पढ़ाया, मैंने बोल दिया है क्या क्या बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या CVT के लिए इंपॉर्टेंट है, और एडिशनल अगेन मैं बोल दे रहा हूँ CVT के लिए आई विल ट्राई टू मेक द क्वेश्चन अप टू हियर कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, एंड आई विल ट्राई टू अपलोड द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ऑब्वियसली द गूगल डॉक्स लिंक. तब तक के लिए ओके, बाय each and everyone. Thank you very much for watching my video again. Very important, it's very important video for each and everyone who are preparing for boards as well as for CUET examinations. Okay, ये सब चीज़ें जो हैं बहुत important है. मेरे वक्त में भी आया था, 2022 CUET में भी आया था, and obviously आप लोगों के examination में भी आ सकता है. So till then, stay tuned, stay safe, keep exploring yourself, and thank you very much everyone for watching my video. Bye.